Welcome back, students. Welcome to our another video series lecture. We have started with your syllabus for air, water and soil microbiology. We have already discussed air microbiology and we are with now water microbiology. The previous basic already we have shown in our previous lectures regarding water microbiology. Now today's point of discussion is water purification methods. Now why it is important to purify the water? Definitely we नीड क्या है वाटर प्यूरिफिकेशन की? तो सबसे पहली नीड है, सबसे पहली ज़रूरत है कि फॉर द कंजम्पशन, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. ओके, व्हेन वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल द पोल्यूशन, फ्री फ्रॉम ऑल द pathogenic organisms, we say that water is been purified or we say that water is safe for the drinking. So for the consumption purpose, for the routine purposes या फिर कुछ ऐसे काम होते ना, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट वाटर. दिस इज द मेन थिंग. एंड इफ वी नीड क्लीन वाटर, अगर क्लीन वाटर हो, क्लीन और सेफ वाटर हो, तो हम उसे कहेंगे सोने पे सुहागा. ओके, सो इट्स लाइक दैट. सो दैट इज द नीड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. So let's start with the methods for the water purification. Before that, we will see what is water purification. So water purification, it is just removal of dirt, harmful, contaminated, pathogenic organisms from the water and make the water clean and safe for the use. Okay, तो simple water purification की definition क्या है? To remove all the dirt, all the turbidity, all the harmful and pathogenic microorganisms from the water, and then we say that our water is purified and safe for the use. So that is the water purification. Now what are the methods of water purifying or water purification? Boiling is there, filtration is there, distillation is there, chlorination is there. Apart from these four methods, there are different methods like sedimentation, coagulation and flocculation. So these are the different methods which we can use for the purification of water. So let's see one by one. So first is boiling. बॉइलिंग से हम सब अवेयर होंगे क्योंकि हम बॉइलिंग ये ट्रीटमेंट इनडायरेक्टली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. और आजकल तो बॉइलिंग की बहुत ही ज़रूरत हो चुकी है, क्लीन और सेफ वाटर की बहुत ही ज़रूरत हो चुकी है, बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस एंड इन्फेक्शन जो कि अगर हम टर्बिड वाटर ड्रिंक करें या हार्मफुल वाटर ड्रिंक करें उस वजह से अराइज होती है. ओके, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी to drink the safe and purified water. Okay, so boiling, जैसे ही हम boiling तो डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. म्यूनसिपल सप्लाई से जैसे ही वाटर आता है, we boil that water. Okay, so it is the best method of purification which kills thousands of microorganisms present in the water without using any chemicals. So let's say what is boiling. Equipments required for boiling is simple container or any vessel or any jar जो आपके किचन में easily available होते हैं. Okay, next is intense heat is required, so which is generated from the fuel or any gas. Next is or any stove required हो सकता है which must be able to produce the heat. So process क्या है? Process is simple. वाटर इट इज़ वेरी बेसिक, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वही हम स्टडी कर रहे हैं इन दी वाटर माइक्रोबायोलॉजी और अंडर द पॉइंट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल. water is placed in a container. It may be any container. Okay, means like especially steel is been used. Okay, so water is placed in a container and it is heated until boiling.
तो जनरली हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. सो 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम वाटर बॉइल करते हैं देन वी से दैट वाटर इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग एंड इट इज फ्री फ्रॉम द we can say pathogenic or harmful organisms. So water is allowed to boil for at least 10 minutes. जब तक उसका we can say boiling point reach ना हो तब तक. लेकिन हम household purpose में we don't see the boiling point. Okay, so generally हम time देखते हैं 10 to 15 minutes और max to max 20 minutes हम boil करते हैं and then once it has been cooled then it is safe or we can say ready to use. Okay, so it is the simple boiling process. इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन जो कोई भी कर सकता है, राइट फ्रॉम द चाइल्ड टू ओल्ड पीपल. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव मेथड. प्लस इट किल द वाटरबॉर्न बैक्टीरिया थ्रू द इंटेंस हीट. तो जो वाटरबॉर्न बैक्टीरिया है, मतलब जो बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द वाटरबॉर्न बैक्टीरिया. तो ये उस बैक्टीरिया को किल करता है. कैसे किल करता है? हीटिंग ट्रीटमेंट से. हम हीट देते हैं, उस हीट के वजह से द ऑर्गेनिजम्स विच आर बीन प्रेजेंट इन द वाटर इज बीन किल्ड. ओके, एंड इट यूजेस वेरी लोकल अवेलेबल मटेरियल्स, मतलब जो हमारे पास है उसी से हम ये ट्रीटमेंट या फिर ये प्यूरिफिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि उसको इस मेथड के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत पड़े या फिर कुछ स्पेशल एपरेटस लाने की जरूरत पड़े. इट इज नॉट लाइक दैट. जो है आप उसमें कर सकते हैं. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. डिसएडवांटेज लाइक इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग and cost inefficient because of the high volume of fuel used. तो सबसे पहले क्या होता है, हम वाटर बॉईल करते हैं तो इट रिक्वायर्स टाइम, सो इट इज द टाइम कंज्यूमिंग. ओके, टाइम लेता है, सो ये उसका डिसएडवांटेज है. सेकेंड थिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फ्यूल. ओके, तो अगर गैस है तो फ्यूल जाना है. इफ यू आर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर द हीटिंग देन देर इज लॉस ऑफ electricity. Okay, so that is the disadvantage. And it will not remove mud from the murky water. Murky water मतलब turbid water. Okay, murky water is nothing but it is turbid water or dirty water. तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये मिट्टी नहीं निकाल पाता या फिर टर्बिडिटी नहीं निकाल पाता. इफ वाटर इज फुल ऑफ टर्बिड, ओके, पूरा टर्बिड वाटर है, उससे हम कहेंगे मर्की वाटर. तो पूरी तरीके से अगर मर्की वाटर है तो बॉइलिंग दिस ट्रीटमेंट इज नॉट दैट मच इफिशिएंट टू रिमूव द मड फ्रॉम द दैट मर्की वाटर एंड इट विल नॉट रिमूव द सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड कंपाउंड्स. तो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स, ऐसे कुछ टर्म्स है. तो सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन बी रिटेन ऑन दी वाटर फिल्टर. ओके, उससे हम बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स. और टोटल सॉलिड्स क्या होते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड्स. डिजॉल्व सॉलिड्स मतलब ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो, कंप्लीटली उसमें मिक्स हो, दैट आर नोन एज द डिजॉल्व सॉलिड. तो ये बॉइलिंग क्या करता है? बॉइलिंग का डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अनेबल टू रिमूव दिस सॉलिड पार्टिकल. तो ये सॉलिड पार्टिकल निकाल नहीं पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ फाइन रेडियस और वी कैन से फाइन इन साइज. ओके, तो इसके लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड भी यूज करते हैं. सो दिस आर ऑल अबाउट द बॉइलिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ठीक है, बॉइलिंग में बस इतना है, यू हैव टू टेक दी सम वेसल और कंटेनर and boil that water for appropriate time at appropriate temperature, let it cool and it is ready to use. So this is the simple boiling method for purification of water. Next is filtering. filtering मतलब हम इससे filter out करते हैं पानी को, in short हम छानते हैं. Okay, so that is the filtration. Straining. Okay,
नाउ इक्विपमेंट और स्किल रिक्वायर्ड इज पोरस बैरियर. पोरस बैरियर मतलब बैरियर यहाँ पर फिल्टर है. ओके, बैरियर इज नथिंग बट हियर इट इज फिल्टर. तो वो फिल्टर, it is cost and efficiency depends on the barrier. Clean woven fibers, cotton cloth, linen, others. तो फिल्टर कौन से यूज किए जाते हैं यहाँ पर? बैरियर्स का मतलब है फिल्टर. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं. हम सिंपल छाननी भी यूज कर सकते हैं टू फिल्टर दी वाटर, या फिर हम फाइबर के क्लोथ यूज कर सकते हैं, कॉटन के क्लोथ यूज कर सकते हैं. ओके, उसे फोल्ड करके, ओके, नंबर ऑफ फोल्डिंग से हम यूज कर सकते हैं टू प्यूरिफाई दी वाटर. या फिर मोरिंगा टी सीड प्रेस केक. मोरिंगा टी सीड मीन्स दिस सीड्स एक्चुअली दिस आर नेटिव टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो इसको अगर हम, इट इज लाइक वी कैन से ग्रीन टी लीव्स. ओके, जो ग्रीन टी लीव्स होते हैं उसकी तरह होता है, उसी की तरह है ये मोरिंगा टी सीड. तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं. इसे प्रेस करके इसका पूरा ऑयल कंटेंट निकाल कर एक केक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके वी कैन यूज इट एज अ फिल्टर. एंड नेक्स्ट इज सिरेमिक फिल्टर. ceramic filter, these are the filters which are made from the ceramic material. okay, so ceramic material ये non corrosive होता है और natural ये cooling material होता है. okay, so that is the ceramic material. And second equipment we require is water vessel or any water container. प्रोसेस क्या है, ये भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. म्यूनिसिपल सप्लाई से वाटर आता है तो हम वो वाटर फिल्टर करके ही फील करते हैं. ओके, विदाउट फिल्टर हम वो वाटर वेसल्स में फील नहीं करते. सो वी फिल्टर दैट वाटर एंड देन वी फील इन द वेसल. ओके, तो यही टेक्निक है. तो आप फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल सी छाननी यूज करेंगे या फिर सिंपल क्लॉथ यूज करेंगे टू फिल्टर आउट द वाटर. सो simple process is there. Fix the barrier on the top of the water vessel. कोई भी फिल्टर या फिर फिल्टर पेपर या फिर कोई भी फनेल आप यूज कर सकते हैं एज अ बैरियर. इफ यूजिंग क्लॉथ इट शुड बी फोल्डेड 4 to 8 times to create thicker barrier. एज आई टोल्ड कि अगर आप क्लॉथ यूज कर रहे हैं फॉर फिल्टर पर्पज तो वो 4 से 8 बार फोल्ड कीजिए एंड देन यू कैन यूज दैट वाटर फॉर filtration, or sorry, you can use that barrier for filtration. Pour water through the barrier into the vessel and that vessel will collect the solids and particles at the top. Then take care to allow filtered water to reach the bucket. तो आप जैसे वो पानी को फिल्टर आउट करेंगे, filtrate will be collected at the vessel. नेक्स्ट जो है सेटलिंग. अब सेटलिंग में क्या कहा गया है? सेटलिंग में सी वी विल डायरेक्टली सी द स्टेप्स. सेटलिंग मीन्स व्हाट? सॉरी. सो सेटलिंग मतलब टू सेटल. सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेटल होते हैं. सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेटल होते हैं. तो वो कब सेटल होते हैं? अगर हम उसे अनडिस्टर्ब, वाटर को अगर हम अनडिस्टर्ब रखें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक 10 to 12 hours, तो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं. जनरली हमने सुना होगा कि जितना ओल्ड वाटर होता है, मतलब ज़्यादा भी ओल्ड नहीं, टिल 4 to 5 days और मैक्स टू मैक्स 7 days, तो वो वाटर में जितनी भी गंद होती है वो सेटल हो जाती है नीचे एंड देन वाटर इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग. तो दैट इज द सेटलिंग मेथड. ओके, सो यहाँ पर हम फिगर की तरफ देखेंगे. सो इन द फर्स्ट फिगर पर्सन कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द रिवर या फिर एनी सोर्स. ओके, पर्सन ने वाटर कलेक्ट किया है. सेकेंड फिगर में उसने क्या किया है? ही हैज टेकन सम कैन. ओके, कैन लिया है एंड या फिर हम कहेंगे जार लिया है. ओके, एंड इनटू दैट जार ही इज पोरिंग दैट वाटर. ओके, जार में वाटर पोर कर चुका है वो. And this in the third diagram you can see
दिस वेसल इज बीन केप्ट अनडिस्टर्ब. ओके, ऐसे ही रख दिया गया है अनडिस्टर्ब फॉर वी कैन से 10 आवर्स. ओके, एटलीस्ट 10 आवर्स. इन द फोर्थ डायग्राम सी, जो ब्लैक लेयर दिखाई गई है यहाँ पर क्या है, आपका टर्बिड और वी कैन से सॉलिड्स ये सेटल हो चुका है या फिर मिट्टी सेटल हो चुकी है. ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हाट, दिस जार, ये जार का जो पानी है, ओके, ये फिल्टर किया गया है इन द कैन, और ये फिल्टर के लिए यूज किया गया है एनी वी कैन से फिल्ट्रेट या एनी बैरियर और एनी क्लॉथ यू कैन यूज, एंड एट लास्ट वी गेट द फिल्ट्रेट वाटर. ओके, सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स. पहले सेटलिंग, और वही सेटलिंग से क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स ये सेटल हो जाएंगे, और जब हम वो सेटल्ड हुए जो और वी कैन से जो वाटर ऊपर होता है, अगर हम उसे फिल्टर करें देन इट इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेटलिंग. सी, इस डायग्राम में दिखाया गया है हाउ द फिल्टर वाटर और वी कैन से हाउ द क्लॉथ इज बीन यूज टू प्यूरिफाई द वाटर. सी, एक फर्स्ट डायग्राम में सिंपल बड़ा क्लॉथ लिया गया है, उसे 2-3 टाइम्स फोल्ड करते हैं. ओके, इन दिस 3 डायग्राम्स दैट बिग क्लॉथ इज बीन फोल्डेड 4 to 8 times, and afterwards it is been fitted into that jar or fitted into that can, and then water is allowed to filter out. थ्रेड बांधा गया है, वाटर फिल्टर किया जाता है, and at last we get the filtered water or purified water. So this is all about the filtration method जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. In next lecture we will discuss remaining method. If you have any doubt regarding this method, you can ask me in comment section. Thank you.